آپ کو دیں اسلام آباد اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کے یہ جھٹکے پشاور، مردان سمیت مختلف اضلاع میں بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ مری میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اس پر مزید کیا ڈیٹیل ہیں جانیں گے ایاز اکبر یوسفزئی نے جوائن کیا ہے۔ ایاز، کیا ڈیٹیل سامنے آ سکی اب تک؟ دیکھیں جی، وفاقی دولت حکومت اسلام آباد میں اور گرد و نواح کے علاقے میں شدید زلزلے کے جھٹکے جو اس وقت محسوس کیے گئے ہیں، اور اس دفعہ یہ اتنے شدید تھے کہ کافی جو ہے وہ یہاں پر جو علاقہ مقیم تھے وہ اپنے گھروں سے باہر آ گئے ہیں۔ اور اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وفاقی دولت حکومت اسلام آباد میں تمام گھروں سے، اپارٹمنٹ سے اور دکانوں مارکیٹوں سے لوگ باہر روڈ پر کھڑے ہو کے کلمہ جو ہے وہ طیبہ کا ورد بھی کر رہے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو زلزلہ ہے اس کا دورانیہ کافی لمبا تھا اور جھٹکے بھی کافی جو ہے وہ زوردار تھے، یعنی اس میں انٹینسٹی کافی زیادہ تھی، اور جس کی وجہ سے لوگوں میں زیادہ خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ زلزلہ جو ہے وہ اس کا دورانیہ تقریباً 1 منٹ سے زیادہ تھا۔ ابھی ریکٹر اسکیل کے اوپر جو ہے تاحال ابھی محکمہ موسمیات کی طرف سے ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں آئی کہ اس کی شدت کتنی تھی اور اس کا دورانیہ کتنا تھا، لیکن اس کو اگر محسوس کیا جائے تو کافی زیادہ تھا، اور اس کا دورانیہ جو ہے وہ بھی کافی لمبا محسوس کیا گیا، جس کی وجہ سے جتنے بھی یہاں پر علاقہ مکین ہیں وفاقی دولت حکومت اسلام آباد کے، جن کے ہم خود یہاں پر موجود ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ تمام لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں۔ تاحال ابھی تک اپنے بلڈنگز، گھروں کے اندر یا مارکیٹوں کے اندر نہیں جا رہے، کیونکہ یہ زلزلہ کا جھٹکا کافی تیز بھی تھا اور کافی لمبا بھی تھا، اس لیے جو ہے لوگ اس وقت خوف میں ہیں اور تاحال ابھی تک اپنی بلڈنگز کے اندر نہیں جا رہے اور کلمہ طیبہ کا ورد بھی کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو ملک میں موجودہ صورتحال ہے سیلاب کے حوالے سے، اس سے پہلے بھی تو لوگ کافی زیادہ گھبرائے بھی ہوئے ہیں، اور اس قسم کے زلزلے کے جھٹکے سے لوگ زیادہ گھبرا کر جو ہے اس وقت گھروں کے باہر موجود ہیں۔ سب لوگ جو، کیونکہ رات کے وقت 12 بجے کے جو ہے وہ بعد کا وقت ہے اور تقریباً یہاں پر لوگ سو جاتے ہیں، 12:30 کا وقت ہوا چاہتا ہے، جہاں پر لوگ اپنے سوئے ہوئے بچوں کو اٹھا کر اس وقت گلیوں میں اور مارکیٹوں میں باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اور اپارٹمنٹس جو کہ کافی منزلہ زیادہ ہیں، وہاں سے لوگوں نے کچھ لفٹ کے ذریعے، کچھ سیڑھیوں کے ذریعے وہ بھی باہر آ چکے ہیں، اور جو سوئے ہوئے بچے تھے ان کو اپنے گود میں اٹھا کر اس وقت باہر موجود ہیں۔ خواتین کی بڑی تعداد اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، بچے اور بڑے، تمام بزرگ، تمام لوگ اس وقت جو ہے اپنی اپنی بلڈنگ سے باہر ہیں۔ تاحال ہمارے پاس کوئی اس وقت جانی یا مالی نقصان کی اطلاع ابھی تک ہمارے پاس موصول نہیں ہوئی، لیکن خوف و ہراس کے حوالے سے ہم خود اس چیز کو وٹنس کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ اپنے گھروں سے باہر موجود ہیں اور تاحال اپنی بلڈنگز کے اندر، گھروں کے اندر یا مارکیٹس کے اندر نہیں جا پا رہے، کیونکہ اس وقت تقریباً 12:21 کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اس وقت اسلام آباد کی جو مین مارکیٹیں ہیں اس وقت کچھ اس میں جو مین، ایاز آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ 5.4 شدت کا زلزلہ آیا ہے۔ ابھی اس حوالے سے آفیشیل کنفرمیشن آنا باقی ہے، کتنا دورانیہ تھا، اس کا مرکز کیا تھا، یہ ڈیٹیلز آنا ابھی باقی ہیں۔ پشاور کا رخ کرتے ہیں، رسول داوڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رسول داوڑ، بتائیے گا پشاور میں کیا اپڈیٹس ہیں، کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، پشاور میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، اور یہ تقریباً جو ٹائم تھا 12:18 پر۔ اس حوالے سے ہم نے زلزلہ پیما مرکز سے بھی رابطہ کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ زلزلے کی جو شدت ہے وہ 6 مجھے بتایا گیا، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 5.4 ہے، لیکن زلزلہ پیما مرکز سے جب رابطہ کیا گیا تو اس نے شدت 6 بتائی، اور اس کی گہرائی جو ہے وہ 15 کلومیٹر بتائی، یعنی یہ اس کی جو ہے گہرائی ہے وہ بہت اونچا، یعنی 15 کلومیٹر ہے، اور ریجن کو ہندوکش بتایا گیا کہ اس کا جو ریجن ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ سارے لوگ گھروں میں آرام فرما رہے تھے، تو اس کے بعد زلزلہ کافی دیر تک رہا، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر سے جو بچے تھے وہ بھی اٹھ گئے، اور اس کے علاوہ جو بڑے تھے وہ بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے کوشش کر رہے تھے کہ اب کہاں جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پشاور، نہ صرف پشاور میں بلکہ بنوں سے بھی اور جنوبی جو اضلاع ہے وہاں سے بھی ہمیں رابطہ کیا گیا، بتایا گیا کہ زلزلے کی جو شدت ہے، جو جھٹکے ہیں وہ انہوں نے بھی محسوس کیے ہیں، نہ صرف پشاور میں بلکہ قبائلی اضلاع میں بھی، اور اس کے علاوہ مردان اور جو سوابی ہے، اس کے علاوہ جو شمالی علاقہ جات ہے وہاں سے بھی یہاں انفارمیشن آئی ہے کہ یہاں پہ بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، اور یہاں ہم نے پشاور میں کافی دیر تک زلزلے کے جو جھٹکے تھے وہ محسوس کرتے رہے، اور زلزلہ پیما مرکز کا یہ کہنا ہے کہ اس کی شدت ہم نے نوٹ کی ہے اور یہ 6 تک ہے، اور اس کی جو گہرائی ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ 15 کلومیٹر تھی، اور یہ جو خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں اور قبائلی اضلاع میں خصوصاً پشاور میں اس کے جھٹکے شدید محسوس کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ خوف و ہراس کا بھی شکار ہوئے۔ جی
रसूल दावड़, आप ये बता रहे हैं कि ज़लज़ला पैमा मरकज़ का ये कहना है कि इसकी शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई है और इसका दौरानिया अभी तक मालूम नहीं हो सका है, लेकिन गहराई ज़रूर मालूम हुई है। 15 किलोमीटर इसकी गहराई आपने बताई और इसकी जो लोकेशन थी वो हिंदू कश रीजन थी। इस दौरानिए में क्या कोई नुकसानात की इत्तला मिली हैं? हुक्काम इस हवाले से क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से PDMA ने भी अपनी अपडेट जारी की है। उन्होंने जो ज़िलज़ले की शिद्दत है वो 5.4 रिकॉर्ड की है। उनका ये कहना है कि अभी तक कोई इस तरह का नुकसान का कोई इतला नहीं हुआ है, लेकिन फौरी तौर पर उन्होंने राब्ते शुरू किए ये है कि अगर ज़िलज़ले की वजह से कहीं पे दीवार या कहीं पे छत गिरने के वाक़यात पर रुनुमा हुए हो रसूल दावड़, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। ब्रेकिंग न्यूज़ अपने नाज़रीन को इसी पर दें। जर्मन रिसर्च सेंटर ने बताया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 महसूस की गई है। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक 6.2 शिद्दत महसूस की गई है। जर्मन रिसर्च सेंटर है जिसने बताया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 महसूस की गई है। रसूल दावड़ हमारे साथ मौजूद है। रसूल दावड़, जिस तरह आप बता रहे थे कि पाकिस्तानी ज़लज़ला पैमा मरकज़ ने इसकी शिद्दत 6 बताई है, लेकिन जर्मन रिसर्च सेंटर की जानिब से इसकी शिद्दत बताई गई है 6.2। जी यकीनन, इस हवाले से चूंकि मैंने खुद रब्ता किया ज़लज़ला पैमा मरकज़ से, तो उनका कहना था कि इसकी जो शिद्दत उन्होंने मालूम की है तो उसके मुताबिक ये 6 थी। उनका ये कहना था, मैंने उनसे ये भी पूछा, उनका कहना था कि इसकी जो गहराई थी वो 15 किलोमीटर थी और 15 किलोमीटर यकीनन बहुत ऊंचा है। इस वजह से इनके झटके भी बहुत ज्यादा महसूस किए गए और देर तक महसूस किए गए। इस वजह से हर घर में तकरीबन हमने देखा कि यानी हमारे अपने और इसी तरह बाकी इलाकों के यहाँ चूंकि हम बाहर निकले हैं, हमने लोगों से बात की, बाहर निकले हैं, वजह यह थी कि सब डर गए कि क्योंकि देर तक ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अलबत्ता करीबी जो इलाके हैं वहाँ से कोई इस तरह की दीवार गिरने या छत गिरने या ज़लज़ले की वजह से कोई नुकसान का इतला तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता PDMA और इसके अलावा यहाँ पर रेस्क्यू 112 और बाकी जो इदारे हैं उसके मैसेजेस आना शुरू हो गए कि वो अलर्ट हो चुके हैं और राब्ते में है कि अगर कहीं पे कोई नुकसान हुआ है ज़लज़ले की वजह से, क्योंकि देर तक रहा और इसके अलावा इसकी शिद्दत भी ज्यादा थी और न सिर्फ पेशावर में था बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जो अजला है बल्कि बेशतर अजला से ये रिपोर्ट्स आ गई है अब के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और देर तक ज़लज़ले के जो झटके थे वो महसूस किए गए हैं। काफी यानी इससे कबल भी एक ज़लज़ला हुआ था, उसकी इतनी शिद्दत नहीं थी, लेकिन इस बार जो ज़लज़ले के झटके थे कई दीवारों में बाकायदा लकीरें और दरारें भी पड़ गई है। ये भी इत्लाहात है। करीबी जो पड़ोस के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि ज़लज़ले की वजह से कोई खास करीबी जगहों से कोई अफोदगी का या किसी नुकसान का इतला तो नहीं है, लेकिन यह है कि लाजिम है कि इसमें दीवारों को और इस तरह आबादियों को नुकसान जरूर पहुंचाएगी। रसूल दावड़, आप हमारे साथ मौजूद रहे, अपने नाज़रीन को अपडेट करें। इस्लामाबाद और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के ये झटके पेशावर और मर्दान समेत मुख्तलिफ अजला में महसूस किए गए हैं। मरी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा चकवाल, टेक्सला और वाह कैंट में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी गहराई 15 किलोमीटर इब्तदाई तौर पर बताई गई है और इसका मरकज हिंदू कश रीजन बताया गया है। और इसी मुतालिक जर्मन रिसर्च सेंटर ने बताया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 महसूस की गई है और इसकी गहराई 15 किलोमीटर और रीजन हिंदुकश बताया गया है। रात 12:18 पर यह ज़लज़ला महसूस किया गया है। इसका दौरानिया कितना रहा है, पाकिस्तानी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक अभी तक इसकी कोई इत्तला नहीं आई है, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन इस्लामाबाद और गिरदनवा और जहाँ जहाँ ये ज़लज़ला महसूस किया गया है वहाँ लोगों में खौफ व हिरास पाया जाता है। लोग घरों से बाहर निकले हैं। विजुअल्स भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये झटके पेशावर, मर्दान समेत मुख्तलिफ अजला में महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद और गिरदनवा में भी ये ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं, जबकि चकवाल, टेक्सला और वाह कैंट में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी गहराई 15 किलोमीटर बताई गई है और इसका मरकज कोहे हिंदूकश बताया गया है। 15 किलोमीटर के अलावा हिंदूकश रीजन और रात 12:18 पर यह ज़लज़ला महसूस किया गया है। इस मुतालिक जर्मन रिसर्च सेंटर ने भी बताया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 महसूस की गई है। रसूल दावड़ हमारे साथ मौजूद हैं। रसूल दावड़, ये बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वैसे ही सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ हैं और मौसम की शिद्दत से काफ़ी नुकसान हुआ है, तो क्या आने वाले दिनों में या इस ज़लज़ले से मुताल्लिक मेट डिपार्टमेंट या हुक्काम की जानिब से कोई पेशगी इत्तला दी गई थी?
चूंकि ज़लज़ले के से मुतालिक तो पेशगी इतला देना अब तक मुमकिन नहीं है। इस वजह से बताया गया है कि ज़लज़ले के एडवांस कोई इस तरह मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन ये फ्लड के हवाले से वक्तन फ़वक्तन पेशन गोया की जा रही होती है कि यहाँ पे बारिश होने जा रहा है या ये इस नाले में पानी आएगी। लेकिन इस वक्त जो ज़लज़ला हुआ है ये न सिर्फ पेशावर में बल्कि जुनूबी जो अजला है डेरा इस्माइल खान से लेकर यानी जो बन्नू है, लकी मरवत है, करक और इसके अलावा जितने भी कबायली अजला है वो सब तमाम इलाकों से इतलात आ रही है कि सब ने ज़लज़ले के झटके महसूस किया है। और इस बार जो ज़लज़ले के झटके थे वो गुज़श्ता ज़लज़ले से बहुत ज़्यादा तेज़ थे और न सिर्फ ज़्यादा बल्कि काफ़ी देर तक ये ज़लज़ला होता रहा। इससे कबल जो ज़लज़ले की जो गहराई थी वो काफ़ी गहरी थी, उस वजह से वो काफ़ी कम महसूस किया गया। इस बार जो गहराई है वो बहुत यानी 15 किलोमीटर है, इस वजह से ज़्यादा लोगों को महसूस हुआ और उन लोगों को भी महसूस हुआ जिसकी यानी 1 फ्लोर पे रहते हैं और ये जो 5वें 6वें 8वें मंजिलों में रहते हैं उनको यकीनन उन्होंने कहा कि ये ज़लज़ला बहुत तेज़ था। उनसे हमारी अभी रब्ता हुआ है मैसेज के ज़रिए, वो कह रहे हैं कि यानी करीब में ऐसा कोई ज़लज़ला हमने नहीं देखा कि इस तरह इतना तेज़ हो। लेकिन इस वक्त तक जानी नुकसान से मुतालिक हम मुसलसल मैसेज के ज़रिए रब्ते में है इंतज़ामिया के साथ। कोई इतला तो फौरी तौर पर नहीं पहुंची है, अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि बाज़ एक दीवारों में दरारें ज़रूर इस वजह से आई है और इस तरह घर गिरने से या छत गिरने या दीवार गिरने के वाक़यात अभी तक या उसमें ज़ख्मी होने की से मुतालिक कोई इस तरह की इतलात नहीं आई है। जी हम दुआ गो हैं कि इस ज़लज़ले से कोई नुकसान ना हुआ हो। रसूल दावड़ आप हमारे साथ मौजूद रहिए और अपडेट ये है कि जर्मन रिसर्च सेंटर ने अब बताया है कि ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6 थी। इससे पहले जर्मन रिसर्च सेंटर ने कहा था कि इस ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 थी। जर्मन रिसर्च सेंटर ने बताया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर ज़लज़ले की शिद्दत 6 महसूस की गई है। इससे पहले जर्मन रिसर्च सेंटर की जानिब से बताया गया था कि इस ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई है। और अबरार खटक ने हमें ज्वाइन किया है करक से, वहाँ की क्या सूरत हाल है अबरार से जानते हैं। अबरार बताइएगा करक में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दीगर इलाकों की तरह करक में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। झटकों के बायस लोग घरों से बाहर निकल गए हैं। लोगों ने कलमा तैयब के वर्द जो है वो शुरू किए हैं। इस वक्त लोग जो हैं बाहर खड़े हैं, लोगों में खौफ और हिरास भी फैल गया है। अभी इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जो पैमाना स्केल है उसके मुताबिक 6 इसका रिकॉर्ड किया गया है। 6.2 इसके जो शिद्दत है वो रिकॉर्ड किया गया है और इसकी जो गहराई है वो 15 किलोमीटर रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त जिला करक में अगर देखा जाए तो लोग जो हैं लोगों में खौफ हिरास फैल गया है, क्योंकि झटके ज़लज़ले के जो झटके थे वो काफ़ी देर तक जो थे वो महसूस किए गए, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकल गए। इसी तरह अगर मैं बताऊं तो करक समेत जुनूबी अजला भर में ये जो ज़लज़ले के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। कोहाट समेत बनू, इसी तरह मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पे ज़लज़ले के झटके महसूस। बहुत शुक्रिया अबरार खटक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ये झटके पेशावर, मर्दान समेत मुख्तलिफ अजला में महसूस हुए। चकवाल, टेक्सला और वाह कैट में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इससे पहले अपडेट कर रहे थे अयाज अकबर, यूसुफ जई और रसूल दावड़। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।